Hello guys, welcome back to again for today's session in Advanced Excel. So in previous video we have discussed already the data validation, conditional formatting, right? How conditional formatting work, right? For today's session we are going to discuss about the chart feature in Excel, how the chart feature going to use, what is the advantages of the using the chart features, right? How chart features going to work and how chart features impact our daily basis working company, right? So इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे गाइस. So in this session we learn to perform the financial calculation, summarize data at macro level, and you're going to see how you're going to financial calculation. So let's see how financial function can be used in banking operation. Banking sector undergoes various business transaction on daily basis. Later the summary of this business transaction also known as a banking statement. Obviously, in bank since morning to evening, lot of transaction going on, different के transactions होते हैं बैंक में, right? After then उसका एक summary prepare करते हैं कि कितने transaction हुए हैं for a day, for a month, day wise, week wise, monthly, quarterly, half yearly, annually. Banking sector is created by perform various calculation on bank account owned by a person, organization, कोई organization हो सकता है, और an institution, कोई institute हो सकता है. Thus इस प्रकार बैंकिंग ऑफिशियल शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल कैलकुलेशन. डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इसको सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं. डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना. क्रेडिट का मतलब आना. जैसे कोई स्टूडेंट है, उन्होंने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप खरीदने के बाद उन्होंने जो पैसे पे किए उनका क्या हो गया, डेबिट हो गया, राइट. एज अ क्रेडिट ही और सी गेट इट लैपटॉप, तो आपका क्रेडिट अमाउंट हो गया. Financial calculation are also applied in the HR, human resource and account department. As you can see here, HR department, account department. So HR main work what to generate the salary, basic salary, HR allowance, special allowance, right? This is called salary structure of this. Payrolls of employees, tax and medicals, calculated total earning as well. This may tax and all things deducted from employee salary. Here you can see financial calculation in merchandise trade. So this is one kind of business structure, how business step into. अगर आप कोई business start करते हैं तो उसके starting के क्या क्या parameters होते हैं, कैसे आप उसको step by step approach कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, business strategy बोलते हैं basically. So here you can see the first one, generate report that contains the detail related to the cash outflow. कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना है कि आपका एस्टिमेट, एक बजट होता है कि कितने खर्चे होने वाले हैं इस बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो, मतलब पैसे का जाना, पैसे का खर्च होना. सेम द परचेज ऑर्डर एंड प्रोसीड रॉ मटेरियल. तो इनका बिजनेस जो है पॉल फर्नीचर का किस में है, वुडन में है, वुडन का बिजनेस है इनका. सेंड रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे भेजा जाता है. उसके बाद से इसका प्रोडक्शन किया जाता है. प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कितना आपको बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाने रिलीज करने हैं. लेबर कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो लेबर वहां पे वर्क कर रहे होते हैं. वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या होता है, जो बिग प्लेस होता है जहां पे आप उसको रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस कॉस्ट, राइट. पैकेजिंग कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व, जो पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट की. आफ्टर देन योर प्रोडक्ट इज रेडी फॉर द सोल्ड, आप उसको सोल्ड करते हैं. देन कैश इनफ्लो स्टार्टेड कमिंग. कैश इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आपका पैसा आना वहां पे स्टार्ट हो जाता है. दिस इज योर बिजनेस स्ट्रेटजी, हाउ कैन स्टेप इनटू. आप स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि उस बिजनेस को कैसे आप स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे उसका एक सेटअप डाल रहे हैं आप, राइट. सॉरी. नेक्स्ट, Harry, the sales manager at Paul Furniture, since need to perform an easy and quick macro level. Macro means small level, macro level analysis of profitability status for the last 5 year. How many year? कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे? Last 5 year की बात हो रही है. ठीक है. In addition, he wants to represent the use profitability data in an easy to understand format for the comparative analysis. How can Harry compare and compare the financial result of the past 5 year? मतलब लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट को आपको बताएं. तो गाइज हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी जहां पे बात किया जाता है लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर, राइट, मीन जहां पे पास्ट की डेटा की बात किया जाए वहां पे आपको डेफिनेटली चार्ट फीचर का यूज करके आप डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा का इंसाइट्स निकालते हैं with the help of the graphical representation of data. Okay. Then Excel provides the chart features, which is also known as the graph features, to represent the numerical information in the graphical format.
You can insert the chart in the worksheet according to the data set, which is collection of the various data item in the corresponding values. So you can see chart यूज फॉर व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जहां पे डेटा को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. Data items in the data set is known as a independent variable and set the data value is known as a dependent variable. Right? What do you mean by depend independent? Like very simple example. जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिपेंड अपॉन पेरेंट्स हु पेइंग द मनी फी फॉर द स्टूडेंट, राइट? Till they are depend of the family parents, right? Independent, once you get a job, that is called independent. By using chart features you can perform following analysis. क्या क्या आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं with the help of the chart? Compare the value of data set over the period of time. जैसे अभी आपने देखा लास्ट 5 ईयर की बात किया जा रहा था केस स्टडी में. Compare the corresponding value multiple data set over the period of time. Like period of time का मतलब क्या हुआ, वहां पे ड्यूरेशन की बात की जा रही है. 5 ईयर का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, वट एवर पार्टिकुलर ड्यूरेशन. So the relationship between the data set. As you can see here, sales manager Paul Furnitures record the calculated profitability figure and wants to represent data in graphical format, and this is your profitability figure. You can see total revenue minus total expense, you get a profit. Like very simple example, मान लो कोई पर्सन है, उनका नाम है अंकित. उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया, उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर स्टार्टअप किया. उसमें उनके जो खर्चे होते हैं $50,000 के खर्चे हो गए फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो $50,000 उनके क्या एक्सपेंस हुए. मान लो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 2025 में, तो उनका पहला मंथ जो रेवेन्यू आया वो आया $70,000. सो 70,000 इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. उनके खर्चे कितने लगे थे? $50,000, $50,000 लगे थे. तो उनको प्रॉफिट कितने का हुआ? $20,000 का हुआ. मान लो अगर किसी अगले महीने फरवरी में उनका 50,000 रेवेन्यू आ गया, तो 50,000 रेवेन्यू और 50,000 एक्सपेंसेस, सो नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? तो इस तरीके से आप प्रॉफिट फिगर को निकालते हैं. हमेशा टोटल रेवेन्यू का आप चेक करेंगे कितना है, उसमें से जितने आपके एक्सपेंस हुए हैं, खर्चे हुए हैं, उसको आप हमेशा माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे आपको आपका प्रॉफिट फिगर पता चलेगा, राइट? टाइप्स ऑफ चार्ट. Line chart, bar chart, column chart, scattered area, and pie chart. There are 6 types of major chart. There's a donut chart, rest of them also. These are the major one, which one you are going to use. नॉर्मली क्या होता है, जब आप चार्ट यूज करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्हें चार्ट यूज करने तो आता है, बट उनसे आप ये कंफर्म करो कि पाई चार्ट और बार चार्ट में क्या अंतर होता है, कॉलम चार्ट और बार चार्ट में क्या अंतर होता है, एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में क्या अंतर है, तो दे डोंट नो. उनको बस ये पता है कि मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया, चार्ट उसमें लग गया, दैट्स इट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल्सो, कि उसमें डिफरेंस क्या है, इन चार्ट के बीच में क्या अंतर है. मान लो आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर आपसे कंफर्म करता है कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट? तो आपसे पूछता है पाई चार्ट और डोनट चार्ट में क्या अंतर होता है, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में क्या अंतर होता है. सब चार्ट में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जिसको आप यहाँ पे पहले समझेंगे, देन आप प्रैक्टिकली जाएंगे. सी, लाइन चार्ट is a more often used to plot the changes in data at various interval of time. यहाँ पे किसकी बात की, इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या, गैप. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज कनेक्ट टू द प्लॉटेड पॉइंट थ्रू अ लाइन. यहाँ पे लाइन बनाता है गैप. जैसे मान लो आप शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, जैसे कोई भी शेयर इंक्रीज होता है, जिसका रेट इंक्रीज हो, तो क्या उसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है. जैसे लॉस में जाता है तो नीचे की तरफ बनता है. या वेदर इंफॉर्मेशन का भी आप देख सकते हैं डेटा साइंस में, वेदर इंफॉर्मेशन जो ग्राफ बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट प्लॉट इन पांडा लाइब्रेरी, वंस यू गो टू द पाइथन लाइब्रेरी. सो जहाँ पे आप मैट प्लॉट और सीबॉन लाइब्रेरी पढ़ते हैं, जहाँ पे ग्राफ को आप डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, तो वहां पे जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसमें क्या कहते हैं, हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं. इट इज गोइंग टू बी प्लॉटेड. बार चार्ट क्या होता है, इट इज यूज टू कंपेयर द इंडिविजुअल आइटम. इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल इन द ग्रुप ऑफ आइटम. मतलब एक ग्रुप ऑफ आइटम है और उसमें से मुझे इंडिविजुअल चेक करना है, एक एक करके इंडिविजुअल चेक करना है. जैसे मान लो एनुअल कोई रिपोर्ट है, एनुअल में क्या जनवरी टू दिसंबर आते हैं, और मुझे किसी पर्टिकुलर मंथ का इंडिविजुअल चेक करना है. इन दैट केस यू गो फॉर द इंडिविजुअल आइटम. Each bar in the bar graph represent measure value. What do you mean by measure? Measure means maximum, minimum, count, sum, average. This is called the measure value basically. Here the data items are organized vertically, y-axis. Vertically, everybody understand. Vertically means a straight line. That is called vertical. And horizontal means row wise. Vertical always showing the column wise. And
The horizontal always showing the row wise. Like in Excel, I have seen row represent numbers, column represent by alphabets A, B, C, D like this, right? So here we're going to display the horizontal x-axis as you can see in diagram here. Column chart, next one, it is similar to the bar chart. ये bar chart के जैसे ही होते हैं. Is used to compare individual item in the group of item C. The same. It different from the bar chart in the way that are the items are represented horizontally x-axis and represented value are the represented vertically y-axis से. यहाँ पे बस axis का फर्क होता है, right? तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जबकि बार चार्ट में आपके क्या थे, हॉरिजॉन्टल थे, जिसमें बस एक्सिस का फर्क होता है, बाकी इनका काम सेम होता है, राइट? पाई चार्ट इट इज यूज टू प्रोवाइड, सो आपने डिफरेंस देखा बार चार्ट और कॉलम चार्ट में. बार चार्ट में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो वाई एक्सिस होते हैं वर्टिकल होते हैं, राइट, और जो एक्स एक्सिस होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं. कॉलम चार्ट में आपने देखा एक्स एक्सिस आपके यहाँ पे क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल होते हैं, और वाई एक्सिस यहाँ पे वर्टिकल होते हैं. सो ओनली एक्सिस डिफरेंसेस. What do you mean by pie chart? It is used to provide the information about the single data set. ये हमेशा single data set का रेशियो बताता है बेसिकली. कौन, पाई चार्ट. डिस्प्ले द रेशियो ऑफ द पीसेस ऑफ डेटा इन ए सिलेक्टेड डेटा सेट. तो हमेशा इस डेटा को क्या करते हैं, पीसेस ऑफ डेटा फॉर्म में शो करता है. कौन, पाई चार्ट. अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि दिस इज अ डेटा सेट, आई वांट टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द पीसेस ऑफ डेटा, राइट, मुझे अलग अलग पीसेस ऑफ फॉर्म में शो करना, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, पाई चार्ट का यूज करेंगे. एरिया चार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया चार्ट? इट इज यूज्ड टू प्लॉट द चेंज इन डेटा इट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम. देखो गाइस, आपने लाइन चार्ट देखा और एरिया चार्ट. लाइन चार्ट में भी क्या पता, इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है देखिए. इस हाईलाइट द एरिया बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट दैट आर प्लॉटेड अगेंस्ट द डेटा सेट. प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉटेड मतलब कहां से कहां तक. जैसे मैंने बताया अगर कोई प्रॉफिट फिगर आप देख रहे हैं, लॉस फिगर, तो कब आपका डेटा में कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम आपका यहाँ पे जनरेट करेगा. ठीक है, जहां पे डेटा का आपका प्रिडिक्शन होने के बाद आपको आउटपुट देगा. बट लाइन चार्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे डेटा प्लॉटेड हो रहे हैं, इंटरवल ऑफ टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे, राइट. सो लाइन चार्ट में आपने क्या देखा गाइस, लाइन चार्ट में क्या होता है, उसको हाईलाइट नहीं करता. लेट मी गो बैक एंड शो यू. सी, it just only plotted the interval of time. Did you see? Whereas if we talk about the area chart with the interval of time, that area also going to be highlighted. See, it highlights the area between the axis line created by the joint points, right? But line chart में वो हाईलाइट नहीं होते हैं पॉइंट्स. लाइन चार्ट में नॉर्मल जो भी इंटरवल ऑफ टाइम होते हैं उसको ड्रॉ कर देता है. दैट्स इट. दैट इज अ मेजर डिफरेंसेस. एरिया चार्ट ओनली हाईलाइट्स दिस, बट line chart never highlights. Next one, scatter chart is used to show the relationship between the data value and the data items. It can be used to show the relationship among the points of the data set. Scattered का मतलब ये होता है बिखरा हुआ, इधर उधर zigzag डेटा एक जगह पे नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, scattered बोलते हैं. It is used to show the relationship between the data values and the data items. So आप यहाँ देख सकते हैं स्कैटर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में आते हैं गाइज. आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा को ऑब्जर्व करके वहां पे बताएगा. आप जैसे वहां पे कर्सर को रखते हैं, जैसे आप प्रैक्टिकली देखेंगे अभी इसमें, सो उस केस में आपको ज्यादा क्लियर होगा. सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ चार्ट which one you cover up. Okay guys, so that's it for this video. In next video we are going to see practically. Thank you so much.